Hello everyone, myself Dr. Abhimanyu Kumar Jha and I welcome you on behalf of Tutronix. If you want to crack IIT JEE or NEET 2021 or 2022, come to us. Tutronix brings to you the most comprehensive and exhaustive online classroom program for JEE NEET by IITians and India's best faculty and teachers in the field of NEET. Apply now for 3 free demo classes from the comfort of your home by IITians and India's best teachers. Our unmatched features include regular online live classes, regular doubt solving, free study materials, small batches with personalized attention, unlimited test series, daily practice problems, as well as recorded video lessons and many more. 1,000 plus students have registered for our JEE and NEET 2022 online classroom programs. What are you waiting for? Please come to us and let's crack NEET. So students, with this introduction, I would like to start with the next topic. And the next topic is related with digestive system. This is our class, our next class on zoology. And we are going to start it on, in the same note at which we had finished our previous lecture. So I think in the previous lecture, if you remember, we had talked about esophagus, stomach, as well as the small intestine. And we discussed a lot about the details of all these organs and the parts of small intestine like duodenum, jejunum, ileum. And we also discussed about the intestinal juice, which is secreted from intestine, not in detail, but it was just a kind of overview. So that was the thing. And we also discussed that what are crypts of liver cone and all, what are villi, what are microvilli and all. So in today's class, we are going to move ahead with the things and we are going to do the topics after that. So once again, I, Dr. Abhimanyu Kumar Jha, welcome you all for this special session of Tutronix on digestion and absorption. And I think we are going to do part 4. We have done 3 parts in digestion and absorption. And this is going to be the 4th part. One class we had for MCQs, and I hope you enjoyed that class a lot. We have done a lot of MCQs, and now you must know how to solve the MCQs. We will be giving you some MCQs as well. If you want, you can ask for that, and you can get the MCQs, which you can do at home, which you can practice at home. Okay, so let's start with the things, and I'm sharing my screen with you. Just one moment, if you can give me. I just going to share the screen with you. I hope it is going to be clear. Okay, so this is the thing, and let me take you to the slideshow. Okay, let's start with this. So I think if you remember, we had started with the different components or different constituents of the alimentary canal. We had talked about esophagus. We had talked about stomach, and we had talked about small intestine also, as well as its different parts like duodenum, jejunum and ileum. हमने इन सब के बारे में बातें की थी. लेकिन एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये कि हमने, अगर आपको शुरुआत में ध्यान हो तो हमने देखा डाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, टीथ कितने तरह के होते हैं, टंग के क्या डिटेल्स हैं. Then we also studied about salivary glands and उनका हमने different types कौन कौन से हैं, उनकी सारी डिटेल भी हमने पढ़ी. और उसके बाद फिर हमने स्टमक, esophagus देखा, फिर स्टमक देखा, और उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की डिटेल्स भी करी. तो अब हम चलते हैं आगे. लेट्स स्टार्ट विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट 4. रेडी? शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट. So now we can move on to the next topic, that is large intestine. And talking about this, you can see that the large intestine is called large because it is 1.5 meter long. And this is something which I would like to tell you. This is 1.5 meter long, and it contains 3 sections of cecum, colon, and rectum. So these are the 3 parts of large intestine: cecum, colon, and rectum. So these are the 3 parts of the large intestine. And it is called large because of its large diameter, but the length is 1.5 meter. So the vermiform appendix is a blind pounds of cecum. Now the ileum opens into, if you remember, the ileum opens into cecum through a valve which is called as ileocecal valve. Through a valve which is called as ileocecal valve. I'll show you
how it is done and all, and you will be feeling that yes, you know the concepts in a very good manner. So these parts help herbivores to digest cellulose. तो अगर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है तो हर्बीवोर्स के लिए आसानी ये होती है कि वो सेलुलोज को आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट हमारे में सेलुलोज डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। हम मेनली स्टार्च खाते हैं। हमारे माउथ में भी जो सलाइवरी एमाइलेज है, दैट इज अल्फा सलाइवरी एमाइलेज, दैट कैन डाइजेस्ट और दैट कैन help in the digestion of starch, which is a polymer of alpha glucose. Cellulose, I hope you all know that it is a polymer of beta glucose. तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हमारे अंदर वो अब नहीं होते और हम सेलुलोज को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को आपको मैं बताऊं, वी कॉल इट एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। Why? Because this was functional in our ancestors, but this is not functional now. वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिए। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल था लेकिन अब फंक्शनल नहीं है। तो इसका फंक्शन क्या रहा होगा? अर्लियर इन द नोमैडिक लाइफ ह्यूमन बीइंग्स जब ग्रुप में जाते थे तो दे यूज्ड टू ईट रॉ फूड। जब वो रॉ फूड खाते थे तो विजडम टूथ की भी जरूरत थी, जो लास्ट मोलर है हर एक, दोनों अपर जॉ और लोअर जॉ में, दोनों साइड्स में। और दूसरा ये भी था कि they used to eat raw food and they used to take the help of wisdom tooth as well as the large canines also. लेकिन अब वो दोनों भी वेस्टिजियल हो गए क्योंकि उसके बाद फायर की डिस्कवरी हुई and human beings started cooking the food and the food became softer. उसी तरह हम जब नोमैडिक लाइफ में थे तो कई बार पत्ते मिलते थे तो पत्तों को खा लेते थे, लीव्स को खा लेते थे। उसमें क्या था? सेल्यूलोज था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब जब से फायर की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद वी स्टार्टेड कुकिंग द फूड। और आज की डेट में अगर आपको सपोज भूख लगती है और आपकी मम्मी उस दिन खाना नहीं बना पा रही है, तो अगर आपकी मम्मी कहती है ठीक है पत्ते खा लो, जो आम के पेड़ के पत्ते लगे हैं खा लो, would you eat that? No, you cannot. You simply cannot. No one can. Because अब वो हैबिट छूट गई, अब वो एडेप्टेशन ही नहीं रहा हमारा, तो इसलिए अब वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आल्सो इट हैज बिकम अ वेस्टिजियल ऑर्गन। पहले इसका फंक्शन क्या था? इसमें सेलुलोज डाइजेस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते थे, लेकिन अब हम सेलुलोज उतना खाते ही नहीं। सेलुलोज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ roughage and that is also required for preventing constipation. So roughage means what? We eat this cellulose in the form of little bit of salad, okay, in form of fibers and all. That's why it is said कि थोड़ा सा सलाद जो है हमेशा हर घर में लंच हो चाहे डिनर हो थोड़ा सा जरूर खाना चाहिए। Why? Because that provides the roughage, and roughage के दो फंक्शन होते हैं। First, it prevents constipation, and दूसरा, you can write it, it prevents constipation. And constipation क्या होता है बेटा? Constipation is कब्जियत जो हो जाती है, हार्ड स्टूल जो पास करते हैं, एंड बॉवल का क्लियर ना होना, बॉवल मूवमेंट्स का क्लियर ना होना। दूसरा फंक्शन जो है रफेज का वो है इट प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड, इट प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड। तो इसलिए अब हमारे में जो है सेलुलोज डाइजेशन की बात ही नहीं रह गई है। तो अब चूंकि हम सेलुलोज मेनली खाते ही नहीं, सो इसलिए हमारे में सेलुलोज की जरूरत भी नहीं, और वेस्टिजियल ऑर्गन भी हमारा जो है वो एक तरह से अब फंक्शनल नहीं है। दैट्स व्हाई it is also an example of vestigial organ. Vermiform appendix, it is also an example of vestigial organ. Why it is an example of vestigial organ? Because it was functional earlier, लेकिन अब functional नहीं है, just like wisdom tooth and large canines. So, the vermiform appendix, it is a blind pounce of cecum, and these parts help herbivores to digest cellulose. So, colon wall has a hostra-like sac. You can see that colon wall has a hostra-like sac, which is involved in churning. इस तरह से churn करेगा वो, and it helps in churning what? The undigested food so that the water can be reabsorbed. The function of large intestine is reabsorption of water, और ये reabsorption of water बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये reabsorption नहीं हुआ water का तो हमें dehydration हो सकती है। So large intestine, please remember that there is no digestion at all. The digestion ends in small intestine only. इलियम के बाद कोई डाइजेशन नहीं होगा, इलियम तक ही डाइजेशन होता है। इलियम के बाद आपका जो इलियम जो खुलता है आपके सीकम में, सीकम से फिर आएगा असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन से ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन से डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन से कोलॉन का एक और पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलॉन, और उसके बाद जो आपका आता है सिग्मॉइड कोलॉन के बाद रेक्टम और एनस। तो इस तरह से आता है। तो कोलॉन वॉल जो है इसमें हॉस्ट्रा लाइक सैक होता है, एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में आप ये ध्यान में रखें कि कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इज दैट क्लियर? So histologically, colon wall has 3 longitudinal muscle bands, जिसको हम कहते हैं टीनिए कोलाई। क्या कहते हैं?
टीनिए कोलाई. I hope you remember this. Histologically, colon wall में 3 longitudinal muscle bands होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? टीनिए कोलाई. I hope you know this. Is that clear? I hope it is clear. Okay, shall we proceed to the next one? Okay, chali. So another characteristic of colon surface is the appearance of a tiny fat-filled projections, जिसको हम कहते हैं epiploic appendages. So I will come to this as well. This is very important. Yeah. So this is another characteristic of colon surface. It is the appearance of tiny fat-filled projections, and these are called as epiploic appendages. So the part of the colon is divisible into ascending, transverse, descending, and sigmoid colon. So as I told you, there are 4 parts. One is ascending, second is transverse, third is descending, and the fourth is sigmoid colon. So sigmoid colon is also called as, this is a spelling mistake, students. Sigmoid colon is also called as pelvic colon. Please remember this. This is very, very important. And the ascending colon is the smallest and has no mesentery. That is, it is not attached. It is having no mesentery. Please remember that. And the last part of the rectum is anal canal, and it is having a powerful sphincter. But please remember that anus जो है वो large intestine का part नहीं है. ठीक है जी, चलते हैं आगे जल्दी से फटाफट, and you can see that we can move to the next one. Okay, so now basically if we talk about this, the anal canal, it comes out from anus, and rectal veins can get distended, and they become enlarged under certain conditions. Like if a person is suffering from persistent constipation मतलब कब्जियत, ठीक है. तो अगर किसी बंदे को या किसी को भी अगर persistent constipations हैं, तो rectal veins जो है उसको distended हो जाती हैं, enlarged हो जाती हैं, and this is due to weakening of its valves, जिसको हम कहते हैं varicosity. So this leads to swollen regions, जिनको हम कहते हैं hemorrhoids. और आपको पता है कि इसमें ब्लीडिंग भी होती है कई बार, और ब्लीडिंग जब होती है तो हम हेमरहॉइड्स या पाइल्स जो कहते हैं वो इन्हीं को कहते हैं. ठीक है जी. सो दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिजीज. सो कॉन्स्टिपेशन के होने से कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं. हार्ड स्टूल जब पास करता है कोई भी इंसान, तो कई बार जो रेक्टल वेन्स हैं दे गेट डैमेज्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस sometimes the blood comes out, and that is called as hemorrhoids or piles. So anal canal is also important. It connects the rectum with anus, and anal canal is about 3 centimeters long. Is it clear? Now, it is the terminal inferior opening of alimentary canal, which is guarded by an internal involuntary sphincter and an external voluntary sphincter. So this is also very, very important. It is the terminal inferior opening of alimentary canal, which is guarded by an internal involuntary sphincter and an external voluntary sphincter. Is that clear? I hope it is fine. Shall we move ahead? समझ में आया? ध्यान रखना कि इंटरनल जो है वो इनवॉलंटरी है. इनवॉलंटरी का मतलब इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. मतलब क्या हुआ कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इसलिए जब बच्चा छोटा होता है तो डायपर में ही पॉटी कर देता है, कंट्रोल में उसके नहीं रहता. लेकिन धीरे धीरे करके जब उसको सिखाया जाता है, ही स्टार्ट सेइंग मम्मा पॉटी आई है. व्हाई? बिकॉज धीरे धीरे करके इंटरनल वाला तो उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो स्मूथ मसल्स से बना है, इनवॉलंटरी मसल्स से बना है. बट एक्सटर्नल वाला उसके कंट्रोल में होता है, क्योंकि एक्सटर्नल इज मेड अप ऑफ skeletal muscles which are what? The muscles which are voluntary. Okay, so जैसे ये मसल है, ये भी तो आपका voluntary मसल है. You can move them at your will. So that is very, very important, and this is what you have to keep in mind. So this is what we have to keep in mind, that the person, even आपको भी जब कभी आपको लगता है कि स्टूल पास करना है, रिफ्लेक्स आता है, तो उसके बाद आप कई बार 1.5 घंटे का आपको कोई इंपॉर्टेंट मूवी चल रही हो, या आप कोई किसी एग्जाम में बैठे हो और 3 घंटे का एग्जाम है, तो कई बार आप रोक लेते हो. Why this is possible? Because of this external voluntary sphincter which is under your control. But that cannot be endless control. That control has to end somewhere. You can stop it for maybe 1.5 hours or 2 hours, or maybe 2.5 hours. It depends from person to person. But endless नहीं है. एक समय ऐसा आता है जब वो आपके कंट्रोल में नहीं होता. I hope you got it. Is that clear? I hope it is fine. चलें आगे. चलो, बहुत बढ़िया. देखो, I try to make it very, very simple, and I always try to make it very easy for all the students. And here you can see this. Let me take you to a very, very important one. So here, now you can see this is the whole digestive system. Now the food is coming from here. Okay, it comes from here, then it comes to esophagus. So this is epiglottis, which is folded down. And you can see this is the esophagus. From esophagus, it comes into your stomach. And now it has come into your stomach, and in stomach you can see that this is the cardiac region, the body. Then you can see the fundus portion or the fundic region.
and then you can see the small intestine. So this is your duodenum. If you can see this, this is duodenum. Then jejunum, this is one which is called as jejunum, and then your point, which is then the part which is most coiled, and that is called as ileum. So that is also very important. And here you can see that after the ileum is opening into, then you can see this. This is very important. The ileum is opening into opening. This is very, very important. And this opening here, this is called as, yeah, here you can see this. This is the one. It is ileocecal valve. This is what I was telling you. यही मैं आपको बता रहा था कि इलियम जब खुलता है सीकम में तो एक वाल्व उसको रेगुलेट करता है इस ओपनिंग को. इसको हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व. क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व. आई होप यू गॉट इट. एनी डाउट? क्लियर है? तो ये जब खुलेगा तो उसके बाद आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ जाएगा? सीकम. तो ये रहा, ये है आपका सीकम वाला पोर्शन, ये. और ये सीकम के साथ ये जो पोर्शन अटैच्ड है ना, ये है आपका क्या? दिस इज योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. आई होप इट इज क्लियर. दिस इज योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके अलावा वी नीड टू सी दैट the food, it opens into the cecum from ileum, and then it goes like this, then it goes like this, and then like this, then like this. So this is your ascending colon. This is your ascending colon because it is ascending. So this is this one, the ascending colon. I hope you got it. Is it fine? Now this will be what? That it is written here also, transverse colon. So this will be transverse. Okay, because it is transversing. Okay. So transverse colon, and then when it comes down, okay, is it fine? So we can say that it is descending. So here, this is the one, descending colon. Is that clear? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आपको क्लियर है. अदरवाइज नीचे वहाँ भी लिखा है, बट वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्योंकि एक ही साथ लिखा है सारा. So this is descending colon. और इसके बाद here you can see that this portion, when it is moving like this is called as sigmoid colon. This is called as sigmoid colon. ठीक है जी. So this is what you have to keep in mind. और sigmoid colon के बाद आप जानते हो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कहलाता है क्या? रेक्टम. रेक्टम तक ही आपका लार्ज इंटेस्टाइन है. एंड प्लीज रिमेंबर कि ये सीकम, कोलॉन और रेक्टम, ये तीनों लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं. सीकम, कोलॉन और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है. आई होप यू गॉट इट. एनी डाउट? Is it fine? And then उसके बाद anus के through undigested food जो है it comes out. The undigested food comes out through anus. Is that clear? Is it okay? Great. So this process in which the undigested food comes out through anus is called as egestion. This is called as egestion. ये भी अपने आप में बहुत important है. Now एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है और लिवर है उसका क्या रोल होता है. जरा इस सेकंड वाले डायग्राम को भी हम देखें. दिस इज द लिवर. सो लिवर इज हैविंग टू लोब्स, वन इज राइट एंड द अदर इज लेफ्ट. लेकिन यहाँ पे वो लोब्स हम अभी ना देख के हम ये देख रहे हैं कि लिवर जो है ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स प्रोड्यूसेस बाइल. और ये जो बाइल है यही अभी आएगा, जब बाद में आएगा तो मैं डिटेल में भी बताऊंगा. बट बाइल जो है यही रिस्पॉन्सिबल है फैट के डाइजेशन के लिए, क्योंकि फैट का डाइजेशन तब तक नहीं शुरू होगा जब तक बाइल आपके फैट को छोटे छोटे मिसेल्स या ड्रॉपलेट्स में ना कन्वर्ट कर दे, जिनको हम कहते हैं मिसेल्स. क्या कहते हैं बेटा? मिसेल्स. सो फैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड एज मिसेल्स, एंड दिस इज डन बाय बाइल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज emulsification of fats. So the fats are being emulsified, और उसके बाद यही बाइल लाइपेज जो एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज उसको एक्टिवेट भी करेगा, और ये इमल्सिफिकेशन जब हो जाता है फैट का उसके बाद ही आपका लाइपेज जो है पैनक्रियाटिक लाइपेज वो एक्ट कर पाएगा और जो है फैट का डाइजेशन कर पाएगा. आई होप यू गॉट इट. एनी डाउट? आई होप इट इज क्लियर. ग्रेट. सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे एक और ऑर्गन है, हालांकि इसको ग्रीन से दिखाया गया. ये ग्रीन नहीं होता है, ये पिंक शेप्ड होता है और पियर शेप्ड ग्लैंड होता है. पिंक कलर का ग्लैंड होता है, पियर शेप्ड ग्लैंड होता है. लेकिन ये जो ऑर्गन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑर्गन का काम होता है बाइल को स्टोर करना. स्टोरिंग द बाइल. स्टोरिंग बाइल इज द जॉब ऑफ व्हाट यू कॉल एज द गॉल ब्लैडर. ठीक है. तो ये जो लिवर से सारा बाइल आएगा वो स्टोर कहाँ पे होगा? गॉल ब्लैडर में. और गॉल ब्लैडर से फिर निकलता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू और ये पहुंचता है कहाँ? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में. ये रहा आपका मेन पैनक्रियाटिक डक्ट.
और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है जी। तो कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एक साथ मिलते हैं और यहाँ एक स्फिंक्टर इसको रेगुलेट करता है। वी विल सी दैट, डोंट वरी, वी विल सी दैट व्हेन वी कम टू डू द थिंग्स इन डिटेल। यहाँ पे स्फिंक्टर और बॉयडन होगा और ये दोनों मिलके एक स्वोलन पोर्शन बनाते हैं जो कि खुलता है किसमें, duodenum में, and that swollen portion is called as hepatopancreatic ampulla. I'm just giving you an overview of this because we will be doing the things in detail when we do the concept of pancreas and all. तो ये hepatopancreatic ampulla के थ्रू ये जो pancreatic juice आया वो और ये जो common bile duct के थ्रू bile आया वो कहाँ खुलता है, duodenum में। Is that clear? लेकिन ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो पैनक्रियाटिक जो आपका जूस लेके आ रहा है, तो उस मेन डक्ट को हम कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। और यहाँ पे हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला या एम्प्यूला ऑफ वेटर भी इसको हम कहते हैं, उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है एक स्फिंक्टर जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। आई होप यू गॉट इट। एनी डाउट्स? तो दिस इज द थिंग, है ना मजेदार चीज। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको जितना मजा आ रहा है ऐसे ही आपको पूरी बायोलॉजी में मजा आएगा अगर आपको हर चीज समझ में आने लगी। समझ में अगर चीजें आने लगती हैं तो कॉन्सेप्ट्स में बहुत मजा आता है बच्चों। बट अनटिल एंड अनलेस आपको समझ में आने लगे, जब आपको समझ में आने लगी तब कॉन्सेप्ट्स इजी हो जाती हैं। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रही है तो हर कॉन्सेप्ट टफ लगता है। तो हर कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको इसी तरह इजी करके कराऊंगा और आप बस कर दीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए चलें आगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। So here you can see this, and here very important thing which I would like to tell you. This is the digestive glands. So let's talk about digestive glands also, क्योंकि अब हम एक complete overview देख चुके हैं कि जो खाना खाते हैं हम वो जैसे ईसोफेगस पे कैसे पहुंचता है। पहले सबसे पहले बकल कैविटी में पहुंचेगा, वहाँ टीथ का क्या रोल है, टंग का क्या रोल है, सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या रोल है, फिर ईसोफेगस से होते हुए स्टमक का क्या रोल है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और क्या होता है और कैसे इजेक्शन होता है, किस पोर्शन का क्या काम है, कोलोन का, सीकम का, रेक्टम का, वो सब कुछ हम आज देख चुके लार्ज इंटेस्टाइन का। और अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं लिवर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। This is called as liver, and it is composed of 4 lobes in human liver. It is composed of 4 lobes in human liver. So this is very important. ठीक है, तो हम जल्दी से देखते हैं। Left lobe is small, okay, and right lobe is large. Okay, so you can see left lobe is small, right lobe is large. तो आप तो कहोगे सर 2 ही लोब हुए तो 4 कहाँ से आ गए? There are 2 additional lobes. One is quadrate and caudate lobe. They are also found located on right lobe's rear side. तो टोटल 4 लोब कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया लेफ्ट लोब। मेन लोब्स 2 ही हैं, एक लेफ्ट लोब है, दूसरा राइट लोब है, लेकिन उसके अलावा एक है क्वाड्रेट लोब, एक है कॉर्डेट लोब, ये भी लोकेटेड है राइट लोब के रियर साइड पे। सो दिस अराइजेस फ्रॉम एंडोडर्म और वेट होता है 1.5 kg, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ये ध्यान रखना। इस देखो नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई भी आपके बॉडी का ऑर्गन हो वो अगर अराइज कर रहा है तो वो अराइज करेगा फ्रॉम एनी ऑफ द 3 जर्म लेयर्स। तो यहाँ पे ये भी जो आपका अराइज करेगा ये अराइज करेगा किसी जर्म लेयर से। तो अंदर वाले जर्म लेयर को हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म। बीच वाले को मीजोडर्म। एंडो मींस इंटरनल, ओके, और इनर, और मीजो मींस मिडिल, एंड एक्टो मींस आउटर। So this arises from endoderm. The weight is 1.5 kg. So exocrine as well as endocrine दोनों functions इसके होते हैं। For humans, it is located below the diaphragm in the right side of the abdominal cavity. In the right side of the abdominal cavity. I hope it is fine. Is it clear? Great. So this is the thing, and then you can see the liver is the body's largest gland. So please remember that this is the largest gland of the body. This question can come in the exam as well. This is very important. Okay. Now the left and right lobes of the liver are distinct from each other, and they are distinct because of a separation which is called as falciform ligament. ये falciform ligament है क्या? Basically ये एक fibrous connective tissue है, and it is made up of, this is of fold of peritoneum. Peritoneum के fold से बना हुआ है। अब आप कहोगे सर ये जो ducts होते हैं वो कौन से होते हैं? देखो जो duct लिवर से आ रहे हैं उन डक्ट्स को हम कहते हैं हेपेटिक डक्ट्स। हेपार वर्ड जो है इट इज एसोसिएटेड विद लिवर, एंड ग्रीक में जो है हेपार बोलते हैं। सो हेपेटिक डक्ट्स दे डेवलप राइट एंड लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट लिवर लोब। तो देखो जो एक राइट लोब से आएगा उसको कहेंगे राइट हेपेटिक डक्ट, जो लेफ्ट लोब से आएगा उसको कहेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। सो बोथ सच डक्ट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन हेपेटिक डक्ट। आई होप इट इज क्लियर।
तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएंगे, राइट हेपेटिक डक्ट राइट साइड से आएगा, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट साइड से आएगा, दोनों आए और दोनों ने मिलकर कॉमन डक्ट बनाया जिसको हमने कहा कॉमन हेपेटिक डक्ट। इज दैट क्लियर? ये लेके क्या आ रहा है? बाइल लेके आ रहा है। ठीक है जी, आगे चलें। नाउ गॉल ब्लैडर की अगर हम बात करें तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिलो राइट लिवर लोब। तो सिस्टिक जो ब्लैडर है, सिस्टिक ब्लैडर डक्ट, देखो ध्यान से समझो, जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो सिस्टिक ब्लैडर डक्ट इज कनेक्टेड टू कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड इट फॉर्म्स अ कॉमन बाइल डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट इज द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो वो सिस्टिक डक्ट जो है वो इस, देखो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ऐसे समझो इस चीज को, राइट हेपेटिक डक्ट इधर मिला, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट इधर मिला, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट से क्या मिला आके? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट ने क्या बनाया इससे जुड़ने के बाद? कॉमन बाइल डक्ट। तो ये देखो, दिस इज राइट हेपेटिक, सपोज दिस इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, this is right hepatic duct, and this is your gland which is very important, and this is called as, suppose this is your gallbladder. So in that case this should be your cystic duct, although this is very what you call as a very small duct. I'll go on to use an eraser for this to make it a little small. Okay, show this to you. Very small duct is there. Okay, and here you can see this is very important. So now this duct is called as cystic duct. Cystic duct, and after the cystic duct, now this has become what? Common bile duct. Why this is common bile duct? Because the bile was being brought from the liver through right hepatic duct and left hepatic duct. They combine to form a common hepatic duct. Okay, this is common hepatic duct. Okay, so right hepatic duct, left hepatic duct forming what? This was left hepatic, right hepatic forming what? Common hepatic duct. I can write it here also. Just one second. Just give me 1 second. I got it here. This is common hepatic duct. Because I could not find space here, तो इसलिए हमें जो है यही लिखना पड़ा. So I hope it is clear now. Okay, clear है? Okay. So this is very important to understand that here you can see this. So this is the thing. और ये cystic duct जब मिलता है, right, देखो right hepatic duct आया, left hepatic duct आया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? Common hepatic duct. दोनों ने मिलकर क्या बनाया? Common hepatic duct. और common hepatic duct के साथ मिला gall bladder का cystic duct, है ना? ये वाला cystic duct. तो cystic duct के मिलने से आपको क्या बन गया? Common bile duct. Is it clear? Any doubt? I hope it is fine. ठीक है जी, समझ में आया? चलो, तो cystic duct जिसको हम gall bladder का duct भी कहते हैं, cystic bladder duct is connected to common hepatic duct and form a common bile duct. That is also called ductus choledochus या common bile duct. इसी को common bile duct को ही कहते हैं ductus choledochus. ठीक है? So numerous polygonal lobules make up internally the liver. और liver के अंदर खूब सारे polygonal lobules हैं. So these lobules are covered by fibrous connective tissue and Glissen's capsule जो है वो इसका covering layer. ठीक है जी, चलें आगे. चलो जी, बहुत बढ़िया. So let me take you. Okay. Just 1 second. Okay. So this is what I wanted to tell you. This is a beautiful diagram. इसमें आप सारी चीजें देख सकते हो और यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें दिखाना चाहता हूँ आज कि आप सारी चीजों को देख सको. देखो ये आपका, देखो लिवर में अगर हम बात करें तो ये राइट लोब है और ये आपका, देखो वो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह हमने दिखाया था आपको. ये आप देखो ध्यान से, ये आपका क्या है? लेफ्ट लोब है. ठीक है जी, ठीक. अब आप देख सकते हो कि एक लिगामेंट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया था आपको. दिस इज कॉल्ड एज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. क्या बताया था मैंने? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. ठीक है जी. अब आप देखो राइट की तरफ से जो डक्ट आया उसको आपने क्या कहा? राइट हेपेटिक डक्ट. दिख रहा है ये क्या लिखा है? बाइल. एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. समझ में आया? ठीक है. अब ये दोनों जब चले साथ में, दोनों जब कंबाइन हुए तो हमने उसको क्या बोला? देखो ध्यान से देखो, कॉमन हेपेटिक डक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. Whatever I explained to you, same चीज यहाँ पे आ रही है.
राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब मिले तो क्या बना, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट के मिलने से फाइनली यहाँ पे गॉल ब्लैडर जब खुला इसमें, ये देखो दिस इज गॉल ब्लैडर, ध्यान से सुनो, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जब इसमें खुला तो इसने क्या बनाया, एक और डक्ट है, कौन सा, सिस्टिक डक्ट, और इसने यहाँ पे बनाया, और इससे बना क्या, इससे फाइनली जो डक्ट बना, ध्यान से देखो, फाइनली जो डक्ट बना वो डक्ट कौन सा बना, सिस्टिक डक्ट, और यहाँ पे ये खुला इसमें, ठीक है जी, यहाँ पे खुला इसमें, ठीक। तो ये जो है इसमें पूरा हम अगर ओवरऑल देखें तो ये जो है इसमें पूरा ओवरऑल करके अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा डक्ट, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा डक्ट जो है सिस्टिक डक्ट जब इधर खुलेगा तो सिस्टिक डक्ट के इधर खुलने के साथ ही यहाँ पे ये बना लेगा क्या, कॉमन बाइल डक्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो सिस्टिक डक्ट खुलता कहाँ पे है, हेपेटिक डक्ट में, यानी कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट में जब भी खुलेगा तो ये बन जाएगा कॉमन बाइल डक्ट, और उसके बाद ये जियोडेनम की तरफ आएगा और ये खुलेगा कहाँ, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में। तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है कहाँ, ये रहा मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, समझ में आया। और इस मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या खुला, कॉमन बाइल डक्ट, समझ में आया। तो ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है इसी को हम कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। हालांकि एक एक्सेसरी डक्ट भी होता है पैनक्रियास का जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, लेकिन दिस इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ विल्सन। तो ये खुलेगा यहाँ पे, और ये पूरा जो है आपका कॉमन जो बाइल डक्ट था, कॉमन बाइल डक्ट, वो भी ये वाला जो डक्ट है ये खुलेगा यहाँ पे, समझ में आया। तो ये दोनों जहां मिलते हैं यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है जी। एंड इस स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के बाद ये पूरा जो है एक एम्प्यूला बना लेता है, देखो सोलन पोर्शन बन गया ना, तो ये एम्प्यूला बन जाता है, और इस एम्प्यूला की ओपनिंग कहाँ खुलती है, पैनक्रियाटिक डक्ट लेके आएगा क्या, पैनक्रियाटिक जूस, और कॉमन बाइल डक्ट लेके आया बाइल, और दोनों मिलके सारा ओपन होते हैं, बाइल भी और पैनक्रियाटिक जूस भी, दोनों खुलता है किसमें, जियोडेनम में। किसमें खुलता है, जियोडेनम में। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो ये जियोडेनम में खुलेगा, और यहाँ पे इस हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला को रेगुलेट करने के लिए, इस हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला का दूसरा नाम होता है एम्प्यूला ऑफ वेटर। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई, ठीक है जी, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही रेगुलेट करता है इसको, और फाइनली पैनक्रियाटिक जूस भी और बाइल जूस भी दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। आई होप यू गॉट इट, एनी डाउट, इज इट फाइन, ग्रेट। चलिए तो बहुत बढ़िया है, चलते हैं अब आगे। सो ईच लोब्यूल इन द लिवर, अब जरा लिवर की हम बात करें, ईच लोब्यूल इन द लिवर इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Radial rows of hepatic cells, 2 rows of hepatic cells are called together as hepatic cord। थोड़ा सा हम लिवर की डिटेल तो देख लें पहले। तो जो लोब्यूल है लिवर का, हर लोब्यूल ये बना हुआ है रेडियल रोज ऑफ हेपेटिक सेल्स से, जिसमें 2 rows of hepatic cells are called together as hepatic cord, and growing liver cord is lined by a layer of endothelia। The growing liver cord is lined by a layer of endothelia, and a space named as hepatic sinusoid is present between the hepatic cord। तो एक स्पेस जो है जिसको हम हेपेटिक साइनोसॉइड भी कहते हैं, ये प्रेजेंट है बिटवीन द हेपेटिक कॉर्ड, ठीक है जी। सो ब्लड फिल्स दोज साइनोसॉइड्स, ब्लड फिल्स दोज साइनोसॉइड्स। आई होप यू गॉट इट। और साइनोसॉइड्स जो है दे आर मोस्टली लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स, बट देयर आर आल्सो अ फ्यू मैक्रोफेज सेल्स। तो मोस्टली तो वो एंडोथेलियल सेल्स से लाइंड होते हैं, लेकिन उनमें कुछ मैक्रोफेज सेल्स भी होते हैं। दीज आर कंसीडर्ड द सेल्स ऑफ अ कुपर, और मैं आपको बता दूं ये सेल्स फेगोसाइटोसिस भी करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूं these are the cells which show phagocytosis। phagocytosis आपको मालूम है बच्चों, मैंने पहले भी बताया हुआ है। those cells which show phagocytosis means कि उन सेल्स में एबिलिटी है कि वो किसी भी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर सकते हैं। सपोज ये सॉलिड पार्टिकल है तो ये फेगोसोम बनाएंगे और धीरे धीरे ये पूरा इनगल्फ हो जाएगा, यानी सेल ईटिंग को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, यानी टेकिंग समथिंग सॉलिड इनसाइड इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस, एंड सेल ड्रिंकिंग को या कोई लिक्विड सब्सटेंस को अंदर लेने को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। आई होप यू गॉट इट, एनी डाउट, is it clear? So this is very important for you to understand it. Okay, so let me take you to another slide now। ध्यान रखना ये कुपर सेल्स वाला बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है जी। चलते हैं अब आगे, और जल्दी से आप देख सकते हैं, यस, द बाइल कैनालिकुलाई इन ईच हेपेटिक कॉर्ड, ये जो बाइल कैनालिकुलाई है हर हेपेटिक कॉर्ड में, इट पासेस in between the 2 layers of hepatic cells। So hepatocytes जिनको हम hepatic cells भी कहते हैं, they pour canaliculi with bile, ठीक है। hepatic cells या hepatocytes, they pour canaliculi with bile, and canaliculi open into branch of the hepatic duct which is situated in the Glissen's capsule। कहाँ situated होता है,
ग्लिसंस कैप्सूल में एट द एंगुलर पोर्शन ऑफ द लोब्यूल। तो ध्यान से देखो, दोनों ही ब्रांचेस जो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब हेपेटिक डक्ट, दे आर मर्ज्ड टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक। और यही है जो कि आपने देखा, इट कम्स आउट फ्रॉम द लिवर एंड फॉर्म्स अ कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो कि हमने देखा कि राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके किस तरह से कॉमन हेपेटिक डक्ट बना रहा है। आई होप इट इज क्लियर। एनी डाउट? इज इट फाइन? ओके, टेक द स्क्रीन शेयरिंग हियर। ओके, तो ये जो हेपेटिक आर्टरी है आपकी, अगर हम इसकी बात करें, ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी लग रहा है, मजा आ रहा है, इजी लग रहा है ना? चलो, so hepatic artery and hepatic portal vein enter the liver and split into many branches to form, ठीक है? तो ये धीरे धीरे करके ब्रांचेस में ये स्प्लिट होगा। एंगुलर पार्ट ऑफ ग्लिसंस कैप्सूल आल्सो कंटेन्स दिस ब्रांचेस। तो ग्लिसंस कैप्सूल का जो एंगुलर पार्ट है उसमें भी ये ब्रांचेस होंगे एंड इट्स फाइन ब्रांचेस ओपन टू साइनसॉइडल हेपेटिक्स। इसके जो फाइन ब्रांचेस हैं ये कहाँ खुलते हैं बेटा? साइनसॉइडल हेपेटिक्स में। तो हेपेटिक पोर्टल वेन का जो ब्रांचिंग अगर हम देखें तो हेपेटिक पोर्टल वेन ब्रांच, हेपेटिक आर्टरी ब्रांच और हेपेटिक डक्ट ब्रांच, ये तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं पोर्टल ट्रायड। आपने कहा कि आपके मन में आ सकता है हम ट्रायड क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि देखो, एक तो ब्रांच हो गया कौन सा? हेपेटिक पोर्टल वेन वाला, एक कौन सा हो गया? हेपेटिक आर्टरी वाला, एक कौन सा हो गया? हेपेटिक डक्ट वाला। तीनों मिलके कहला रहे हैं बेटा पोर्टल ट्रायड। सो ऑल द हेपेटिक साइनसॉइड्स ऑफ वन कैप्सूल ऑफ ग्लिसन are opened in the central vein or in the lobular vein. So all the central veins are combined and form a pair of hepatic veins that come out of the liver and open into the liver inferior vena cava. Okay, inferior vena cava. Is it clear? Any doubt? Is it fine? Great. तो जल्दी चलते हैं अब आगे फटाफट और आगे लेके चलते हैं चीजों को। अब चलते हैं हम फंक्शंस ऑफ लिवर पे। क्लियर है? तो देखो, फंक्शंस ऑफ लिवर बड़ा मजेदार है जी। जल्दी से हम देखेंगे लिवर के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर में। सबसे पहला फंक्शन है सिक्रीशन एंड बाइल सिंथेसिस, यानी सिक्रीशन भी करता है, बाइल सिंथेसिस भी करता है। यानी अगर कोई पूछा जाए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में, नीट में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई बाइल का सिंथेसिस कौन करता है या बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, तो आंसर है लिवर। सो दिस इज द मेन लिवर फंक्शन। बाइल होता क्या है? इट इज एल्कलाइन। और कलर कैसा होता है बाइल का? येलोइश ग्रीन। इट इज एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब पीएच उसका 7 से ज्यादा होगा और येलोइश ग्रीन एल्कलाइन फ्लूइड है। सो इन बाइल जूस देयर आर बाइल सॉल्ट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ग्लाइकोकोलेट है, टोरोकोलेट है, बाइल पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है और लेसिथिन है। ये हम ध्यान में रखेंगे। बाइल सॉल्ट्स भी हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ग्लाइकोकोलेट है। तो टोटल अगर हम देखें तो इसमें हम 3 तरह के हम देखते हैं कि मेन सॉल्ट्स बाइल जूस में जो है अगर हम देखें तो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम का ही फॉर्म होता है, सोडियम सॉल्ट का ही ग्लाइकोकोलेट होगा और सोडियम टोरोकोलेट भी होगा, बाइल पिगमेंट्स भी होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी होगा और लेसिथिन भी होगा। सो बाइल सॉल्ट्स हेल्प टू इमल्सिफाई फैट्स, बाइल सॉल्ट्स हेल्प टू इमल्सिफाई फैट्स and bile prevents putrefaction. So this is not putrefaction, this is putrefaction basically, है ना? Putrefaction of the food. I hope it is clear. और ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया विच आर हार्मफुल। तो बाइल के इतने सारे यूजेस। अब आप कहोगे सर बाइल सॉल्ट्स में 3 अगर आ गया तो कौन कौन सा लिखे? पहला लिखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा लिखोगे सोडियम ग्लाइकोकोलेट, तीसरा लिखोगे सोडियम टोरोकोलेट। आप कहोगे सर बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? तो ये भी बता देते हैं। देखो, बाइल पिगमेंट्स 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फटाफट देख लो जल्दी से फटाफट। एक होता है बिलीरुबिन, ठीक है, एक होता है बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन जो तुम्हारा है वो होता है येलो कलर का, है ना? और दूसरा होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन जो तुम्हारा है वो होता है ग्रीन कलर। किस कलर का होता है बेटा? ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। चले आगे, चलो। तो अगला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ध्यान से देखेंगे फटाफट। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें एक आता है ग्लाइकोजेनेसिस। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है, दैट इज एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में है वो कन्वर्ट होकर क्या बनाता है? ग्लाइकोजन। तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम लेते हैं, देखो ग्लूकोज के केस में हम कितना भी ग्लूकोज खा लें उसमें प्रॉब्लम तभी आएगी जब डायबिटीज हो जाए, अदरवाइज शुरुआत में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है दैट इज कन्वर्टेड टू फॉर्म ग्लाइकोजन एंड इट इज स्टोर्ड इन मसल सेल्स एंड इट इज स्टोर्ड इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में ये स्टोर हो जाता है। सो इट इज व्हाट? देखो इसका मतलब समझो, ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। पहले मतलब समझो इसका, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। इट इज कन्वर्जन एंड स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंड दिस इज नोन एज glycogenesis. This is known as
glycogenesis. So glycogen is the principal food processed in the liver. It is the principal food processed in the liver. I hope it is clear. Any doubt? Clear है? चलें आगे. चलो. अगला है glycogenolysis. What is glycogenolysis? It is the conversion of glycogen into glucose back when glucose level in blood falls down. यानी जब मान लो आपको खाना नहीं मिला, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आपको खाना नहीं मिला, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनाता है. सपोज आपने रात को खाना नहीं खाया, उस समय कि नहीं मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो आपकी मम्मी बचपन में तो बहुत ज्यादा जब आप छोटे थे मनाती थी, अब मनाना छोड़ देते हैं, है ना, कहते हैं चलो छोड़, नहीं खाएगी कोई बात नहीं, रहने दो कोई बात, है ना. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में जो आपका ग्लाइकोजन है वो टूट के ग्लूकोज बनाता है, इसीलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. खास सुबह उठ के आप दोबारा मान जाते हो या मम्मी मना लेती हैं और उसके बाद कुछ खा लेते हो, है ना. सो इट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज बैक when glucose level in blood falls down. This is called as glycogenolysis. अब इसका मतलब क्या है? ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन. तो दोनों ही चीजें, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में होगा तो ग्लाइकोजेनेसिस होगा बेटा, और जब आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज ना होके ग्लूकोज की कमी होगी तो उस केस में ग्लाइकोजन टूट के या लाइसिस करके या ब्रेकडाउन होके ग्लाइकोजेनोलिसिस का प्रोसेस होगा. आई होप यू गॉट इट. एनी डाउट? इज दैट क्लियर? ग्रेट. तो अगला है ग्लूकोनियोजेनेसिस. जरा इस पे भी बात कर ही लें, तो जल्दी से इसकी भी बात कर लें. ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं जल्दी से फटाफट देखेंगे हम. यस, लेट मी टॉक अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? दिस इज व्हाट ग्लूको मींस ग्लूकोज, नियो मींस न्यू, और जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सोर्सेज. सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सोर्सेज. सो इट इज एट द टाइम ऑफ नीड. लिवर कन्वर्ट्स नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स. कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स? जैसे कि अमीनो एसिड्स, जैसे कि फैटी एसिड्स. इनको जब लिवर जो है कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाता है तो हम इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. देखो मतलब समझो, वर्ड्स का मतलब जितना समझ लोगे उतना इजी होगा. एक ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि आपका जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं या न्यू सोर्सेज है. न्यू मतलब होता है बच्चों न्यू. न्यू मींस व्हाट? न्यू. और जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, है ना. Gluconeogenesis means formation of glucose from new sources. यानी new sources कौन से हैं? non carbohydrate compounds जैसे amino acids, जैसे fatty acids into glucose. Is that clear? Any doubt? तो ये जो conversion है इसको हम कहते हैं gluconeogenesis. This conversion is called as gluconeogenesis, and this is the neoformative process of glucose. This is the neoformative process of glucose. I hope it is clear. समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? चलो देखो, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको हर चीज बहुत इजी करके समझा दूं. जल्दी चलते हैं आगे. अगला है ग्लाइकोनियोजेनेसिस. व्हाट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस? ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, है ना, और नियो मतलब न्यू, और जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. सो अब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन न्यू सोर्सेज से, ये क्या कहलाएगी? ग्लाइकोनियोजेनेसिस. सो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम लैक्टिक एसिड व्हिच कम्स फ्रॉम मसल्स. आपको पता है कि जब स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें या वॉलंटरी मसल्स की हम बात करें, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है, ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कर जाता है इसमें, और जब लैक्टिक एसिड इसमें एक्यूमुलेट कर जाता है तो हमें पता है क्या होता है? मसल फैटिग होता ना, होता, दर्द होता है खूब मसल्स में. कभी किसी दिन जाके आप अचानक जिम में 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे लगा लो, जब आप रेगुलरली ना जाते हो और कभी अचानक जाके लगा लो तो बहुत दर्दें होती हैं हाथ में, पैर में, है ना. सो दैट इज कॉल्ड एज मसल फैटिग. तो ये जो मसल फैटिग है ये तब खत्म होगा जब ये जो लैक्टिक एसिड बना आपके मसल्स में वो टूट के डिसोशिएट हो जाए. ठीक है जी. So this is called as glyconeogenesis. मतलब क्या होगा कि लैक्टिक एसिड तो आपका टूट के डिसोशिएट होगा ही, लेकिन कई बार सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन भी करना पड़ता है लैक्टिक एसिड से. तो जब सिर्फ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन होगा लैक्टिक एसिड से तो ही उसको हम सिर्फ कहेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस, अदरवाइज ग्लाइकोनियोजेनेसिस नहीं कहेंगे. आई होप इट इज क्लियर. चलिए जी, बहुत बढ़िया. चलते हैं आगे और फंक्शंस देखिए कुछ लिवर के. अगला फंक्शन क्या है? कितना मजेदार ऑर्गन है लिवर. देखो अभी तो बहुत कम फंक्शंस देखे, अभी बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. चलो, सो फैट स्टोरेज. तो देखो लिवर रिटेन्स फैट्स इन लिमिटेड अमाउंट्स. तो लिमिटेड अमाउंट्स में फैट भी रिटेन करता है, और हेपेटिक सेल्स जो आपके हैं, जो मेन सेल्स हैं लिवर के, दे प्ले एन एसेंशियल फंक्शन इन फैट मेटाबॉलिज्म. दे प्ले एन एसेंशियल फंक्शन इन फैट मेटाबॉलिज्म. एंड इन द लिवर ऑफ ड्रग अब्यूजर्स, जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हो या कोई बहुत ज्यादा एल्कोहल लेते हो, तो उनके केस में आप देखते हो कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैट्स इंक्रीजेस. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैट्स इंक्रीजेस. तो ये होता क्या है कि ऐसे में फैटी लिवर कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है बेटा? फैटी लिवर. सो दिस एक्यूमुलेशन
of fats reduces liver function. कई बार ऐसा होता है कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल जो लेता हो तो उसके अंदर फैटी लिवर सिंड्रोम बहुत देखा गया है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली द फैट it starts depositing, so concentration of fats increases, ठीक है। So this accumulation of fats reduce liver function and alcoholic liver cirrhosis, this is the term for liver damage due to alcohol consumption। होता क्या है liver cirrhosis, ठीक है, मान लिया कि अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से होगा, ठीक है, लेकिन होता क्या है, लिवर में जो कुछ पोर्शन है वो फाइब्रस हो जाते हैं। तो जो पोर्शन उसका फाइब्रस हो जाएगा, क्या वो फंक्शन करेगा नॉर्मली? नहीं करेगा। दिस इज दैट क्लियर? ग्रेट। अब चलते हैं आगे कुछ और फंक्शंस देखें। अगला कुछ फंक्शन जो हम देखना चाह रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज डीएमिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? देखो एमिनो एसिड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, R ग्रुप है। तो ये पूरा अगर हम ध्यान से देखें तो, लेकिन NH2 ग्रुप को हम इधर ना लिख के हम लिखते हैं हमेशा उधर। उधर क्यों लिखते हैं, इसका रीजन क्या है, ध्यान से समझो। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हम जब बॉन्ड दिखाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा CONH के बीच बनता है। तो यहाँ पे हमारा होता है NH2 और यहाँ पे हमारा होता है COOH, ठीक है जी, यही दिखाते हैं। तो इस एमिनो एसिड में ये जो NH2 ग्रुप है इसको रिमूव भी तो करना है। सो हाउ टू रिमूव दिस एमिनो ग्रुप? This is called as deamination. This is called as deamination. Why it is called as deamination? DE means removal. DE means removal, and amination means amino group. So removal of amino group is called as deamination, and this liver is also helping in the formation of urea through urea cycle. So deamination of amino acids is done primarily by liver, and amino acid, that is NH3 or ammonia separation from amino acids, is done by liver. So in the amino acids, the ammonia separation, that is the separation of this group, is done by the liver. And liver also converts the ammonia from deamination into urea, and this cycle is called as ornithine cycle, also known as urea cycle. इसी cycle को हम कहते हैं बेटा ornithine cycle या फिर urea cycle. So and the ammonia level in the animal body is raised after the liver spoilage and the animal dies. Is that clear? तो देखो पढ़ाते पढ़ाते जो है हमें तो जोश आता है, लेकिन आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, आपको भी बड़ा मजा आ रहा होगा। देखिए ये YouTube पे जो हम वीडियोस डालते हैं, these are going to be very very helpful, and these are really really very important, and you can see that ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें आमतौर पे मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग रात को जगना चाहते हो तो चाय जरूर ले लिया करो। चाय अगर नहीं होती तो कॉफी ले सकते हो, और अगर छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, अगर घर में चाय या कॉफी अलाउ नहीं करते तो आप थोड़ा बहुत कुछ भी जो आपको ठीक लगता है, जो आपको जागने में हेल्प करे, बट थोड़ा सा रातों को जगना भी शुरू करिए, बिकॉज द पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू बर्न द मिडनाइट ऑयल इज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। जब तक मिडनाइट ऑयल नहीं बर्न करोगे बच्चों, तब तक जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। जरूरी नहीं कि आप रात को ही जगो, आप सुबह भी जल्दी जग सकते हो। अगर आप सुबह जल्दी उठ पा रहे हो, आप सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है, बट देन यू हैव टू मैनेज, ठीक है। तो ये चीज है, और फटाफट हम चलते हैं आगे, ठीक है जी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? चलें आगे जी। ग्रेट, चलिए, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। जैसे हम लोगों को भी जगना होता है ना, और लगातार खूब सारी क्लासेस चलती हैं, सो व्हाट वी आल्सो डू इज दैट वी टेक अ कप ऑफ टी इन बिटवीन, थोड़ा बहुत कभी कभार बीच बीच में, नॉट इन ऑल द क्लासेस, बट एटलीस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 4-5 आवर्स और 3-4 आवर्स, ठीक है। So that is the thing. So here you can see the purification of blood. So spleen and liver. अच्छा, YouTube पे ये जो वीडियोस Tutronix के आप देख रहे हो, ये फॉलो जरूर करना, और ध्यान से एक एक वीडियो फॉलो करना, क्योंकि एक भी वीडियो अगर आप छोड़ते हो तो आपका वो लिंक टूट जाएगा। So don't forget that any of the video you are not going to leave. Don't forget that any of the video you are not going to leave. You are going to see and learn from each and every video. ठीक है, हर वीडियो से आप ढंग से लर्न करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी मेरी क्लास होती है तो आपको पता ही है क्लास का टाइमिंग एंड ऑल। सो आप ये कर सकते हो कि आप उस समय नोट्स लेके बैठो, अपने नोट कॉपी लेके बैठो, नोटबुक आप लेके बैठो, और नोटबुक पे आप मेन पॉइंट्स नोट करो। देखो इसमें फायदा ये है कि यूट्यूब पे आप इसको रिवर्ट भी कर सकते हो, रिवर्ट बैक करके आप पीछे का भी देख सकते हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, और उससे आपको पीछे का कॉन्सेप्ट जब भी रिवाइज करना हो, यू कैन ऑलवेज रिवाइज। सो नेक्स्ट पार्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. So spleen and liver separate dead blood cells and bacteria from the blood. So
आप ये भी जानते हो कि कुपर सेल्स जो होते हैं लिवर में और फेगोसाइट्स जो होते हैं स्प्लीन में, दे परफॉर्म दिस फंक्शन। तो कुपर सेल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दीज आर द सेल्स व्हिच आर शोइंग व्हाट, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, एक्सेप्ट एक, हम बस जो आपका लिवर जो है एक गामा ग्लोबुलिन बस सिंथेसाइज नहीं कर पाता, इसके अलावा सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिवर सिंथेसाइज करता है। सो एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स की बात हो रही है, ओके। So all type of plasma proteins are synthesized in the liver. Is that clear? Any doubt? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? That's great, that's great. देखो कॉन्सेप्ट जब समझ में आता है तो सब्जेक्ट में मजा आने लगता है. That is very very important. Now most of the blood clotting factors they are synthesized in the liver. और ये सारे के सारे blood clotting factors मैं आपको याद करवाऊंगा mnemonics के थ्रू, मैं सारी चीजें आपको करवाऊंगा. Don't worry, okay? बस आप ढंग से करते जाएं और अगली बार नीट पे फोकस रखें. ठीक है, so most of the blood clotting factors are synthesized in the liver. Synthesis of heparin, this is very important. Heparin is an anticoagulant. It is a mucopolysaccharide. एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या है, पहले ध्यान से समझो. देखो, हमारा ब्लड हमारे बॉडी के अंदर भी क्लॉट बना सकता है. तो अगर बॉडी के अंदर क्लॉट बना लेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी ना. क्या होगा, डेथ हो जाएगी बंदे की. ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर कोई एंटीकोएगुलेंट तो होगा जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता है. दैट इज कॉल्ड एज हेपेरिन. अब आप एक चीज समझो, जब आपका ब्लड लेने कोई आता है, सपोज कोई टेस्ट है और उसमें कोई आपका ब्लड लिया जाता है, सपोज कि भाई आपका आरबीसी काउंट देखना है या डब्ल्यूबीसी काउंट देखना है, कुछ भी देखना है, तो उसमें जब आप ब्लड टेस्ट देते हो, लाल पैथ लैब वाले आते हैं या कोई भी, आजकल तो सैंपल्स घर से ले जाते हैं कलेक्ट करके, तो उस केस में आपको जो सिरिंज, जिस सिरिंज से ब्लड लिया गया, वो तो ब्लड जब बाहर लिया जाएगा तो ब्लड तो बाहर क्लॉट कर जाएगा, लेकिन करता है क्या? नहीं करता. क्यों? क्योंकि वो जो नीडल है दैट इज हेपेरिनाइज्ड. वो जो नीडल है दैट इज कोटेड विथ हेपेरिन और इट इज कोटेड विथ EDTA. जब लैब में यूज होते हैं ये ब्लड के सैंपल्स, जैसे ब्लड सैंपल्स पे आप काम करते हो, सपोज आप उससे अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह आइसोलेट करते हो, लाइक प्रोटीन और DNA और एनीथिंग, तो भी आपको ब्लड चाहिए लिक्विड फॉर्म में. आपको ब्लड जो है क्लॉट फॉर्म में थोड़ी चाहिए. तो आप क्या करते हो, आप अपने उन वायल्स में पहले से ही EDTA डाल देते हो. आप अपने उन वायल्स में पहले से ही EDTA डाल देते हो, दैट इज इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. इस तरह से जो ब्लड बैंक है, अब ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करना है, उसमें भी क्या यूज होगा, सोडियम सिट्रेट वगैरह. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू learn and these are very very important. So heparin जो आपका एंटीकोएगुलेंट है, it is a mucopolysaccharide. mucopolysaccharide का मतलब क्या है कि म्यूसिन ग्रुप भी है और पॉलीसेकेराइड तो है ही है. So all these are very important and ये synthesis of heparin भी लिवर का ही काम है. So some heparin is also formed by basophils. ठीक है, some heparin is also formed by basophils. और basophils आप जानते हो ये WBC का एक टाइप है, ग्रैनुलोसाइट्स में आता है. ग्रैनुलोसाइट्स वो WBCs होते हैं या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं. तो इनमें जो एसिडिक डाई के साथ स्टेन होगा दैट इज एसिडोफिल या इओसिनोफिल. जो बेसिक डाई के साथ स्टेन होगा वो बेसोफिल और जो न्यूट्रल रहता है वो न्यूट्रोफिल. तो बेसोफिल्स यानी जो बेसिक डाई के साथ स्टेन होते हैं ये भी कुछ हेपेरिन जरूर बनाते हैं एंड दीज आर अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. आई होप यू गॉट इट. शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, नेक्स्ट इज विटामिन ए की सिंथेसिस. अब सोचो एक लिवर जाने कितने काम करता है. ठीक है, सो विटामिन ए सिंथेसिस भी यही करता है. इसीलिए तो कहते हैं कि लिवर अगर डैमेज हुआ इंसान का, देखो कई लोग कहते हैं ना हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल है जी. ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल है जी, क्योंकि ब्रेन अगर नहीं चलेगा तो भी काम नहीं चलेगा. हार्ट नहीं चलेगा तो इंसान का काम चलेगा नहीं. लेकिन हर ऑर्गन इंपॉर्टेंट है. हार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, लंग्स भी तो इंपॉर्टेंट है, लिवर भी तो इंपॉर्टेंट है, किडनी भी तो इंपॉर्टेंट है. अगर किडनी नहीं होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट कैसे करोगे? अगर यूरेटर नहीं होगा, अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा, यूरेथ्रा नहीं होगा तो कैसे करोगे? हर ऑर्गन की इंपॉर्टेंस है. उसी तरह जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर टिश्यू की इंपॉर्टेंस है, हर ऑर्गन की इंपॉर्टेंस है और हर ऑर्गन सिस्टम की इंपॉर्टेंस है. कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, बिल्कुल हमारे जैसा. ठीक है जी, तो चलते हैं आगे. विटामिन ए सिंथेसिस की बात करें. विटामिन ए सिंथेसिस भी लिवर कराता है. द लिवर ट्रांसफॉर्म्स द कैरोटीन इनटू विटामिन ए. कैरोटीन, अच्छा एक बात बताओ, विटामिन ए का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है गाजर. गाजर है ना? कितने लोग गाजर खाते हो? अब देखो मुझे चश्मा लगा हुआ है ना? आप में से कितने बच्चों को चश्मा लगा होगा, है ना? there are many students who might be wearing specs. लेकिन कहते हैं कि अगर आप विटामिन ए पूरा प्रॉपर लेते जाओ तो स्पेक्स का पावर नहीं बढ़ेगा.
स्पेक्स लगने के और भी कई रीजंस होते हैं, जरूरी नहीं कि विटामिन ए की कमी हो जाए तो ही। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है। ये ज़ेरोफ्थैल्मिया मतलब ड्राई हो जाती है आपकी आईज, और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब निक्टेलोपिया भी कहते हैं। ये दोनों चीजें विटामिन ए की कमी से होती हैं, लेकिन विटामिन ए की कमी से कहते हैं विजन भी कमजोर हो सकती है। बट विजन कमजोर होने के और भी रीजंस हैं, जरूरी नहीं कि विटामिन ए की वजह से ही हो। बट अगर आप विटामिन ए लगातार लेते रहोगे, तो अगर आपको स्पेक्स लग भी गए तो भी आपका जो है विजन और कमजोर नहीं होगा। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिवर ही कैरोटीन को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू विटामिन ए। नाउ दिस कैरोटीन इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये तो मालूम है। और कैरोटीन मिलता है किसमें ज्यादा? वही कैरेट में। और किसमें मिलेगा? किसमें मिलता है? कैरेट में। इसीलिए कैरेट से याद रखना कैरोटीन। इज दैट क्लियर? चलो जी। नाउ लिवर स्टोर्स द विटामिन। कौन कौन से? देखो विटामिन में अगर मैं कहूँ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल विटामिन में तुम्हारा आता है विटामिन ए, डी, ई, के। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये सारे के सारे आपको मिलते हैं किसमें? लिवर ही बनाता है ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन। और ये आपका विटामिन बी 12। चलो जी, मेरी चाय आ गई है, फटाफट हम लेट्स मूव ऑन विद द थिंग्स। ठीक है, तो देखो जब भी हम क्लास लगातार लेते हैं तो वी नीड दैट टी एज अ स्टिमुलेंट। टी आपको पता है ना, टी में क्या होता है जो स्टिमुलेंट का काम करता है? थीन। टी में थीन भी होता है, कैफीन भी होता है, और कॉफी में क्या होता है? कैफीन। ठीक है, तो लिवर ही स्टोर करता है इन फैट सॉल्युबल विटामिन को, जिसको हम कहते हैं ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एंड एक और वाटर सॉल्युबल विटामिन भी है जिसको लिवर स्टोर करता है, दैट इज विटामिन बी 12। आई होप यू गॉट इट। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? चलिए जी, गुड। नाउ मिनरल स्टोरेज की अगर हम बात करें तो मिनरल स्टोरेज भी यहाँ पे हम बेटा ये गैप हमें लगाना पड़ेगा। मिनरल स्टोरेज भी लिवर करता है। लिवर स्टोर्स आयरन। किस फॉर्म में करता है? ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ बेटे, ये आप नोट कर लेंगे। लिवर स्टोर्स आयरन इन फेरिटिन फॉर्म। लिवर स्टोर्स आयरन इन फेरिटिन फॉर्म। तो फेरिटिन के फॉर्म में लिवर जो है आयरन को स्टोर करता है। एंड लिवर ऑल्सो स्टोर्स आयरन, देन कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम एंड सो ऑन। सो लिवर इज अ गुड आयरन सोर्स ऑल्सो। तो बहुत अच्छा आयरन सोर्स है लिवर, ये आप ध्यान में रखेंगे। एनी डाउट? चलें जी, आगे चलें, ढन कर दें। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस, एक और फंक्शन जो मैं आपको लिवर का बताना चाहूंगा वो फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। अब आप कहोगे सर ये है क्या? ध्यान से देखो। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब लिवर ट्रांसफॉर्म्स द टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन दिस प्रोसेस। जैसे तो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है तो कहते हैं ना कि भाई ज्यादा ड्रिंक करना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अल्कोहल अगर आप लेते हो ज्यादा तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस है आपकी बॉडी के लिए, उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कौन बदलेगा? लिवर। तो लिवर क्या करता है? लिवर बेचारा उसको बदल देता है प्रोस्टिक एसिड में। जो भी तुम टॉक्सिक सब्सटेंसेस लेते हो, जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका क्यों लिवर खराब होता है? क्योंकि लिवर उसको बदलता है प्रोस्टिक एसिड में। अब बॉडीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मेक अप द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल प्रोस्टिक एसिड इज देयर, तो प्रोस्टिक एसिड इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द लिवर इनटू स्टेबल क्या? पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। ठीक है, क्योंकि भाई लिवर ने उसको नॉन टॉक्सिक में बदलना है, तो पहले प्रोस्टिक एसिड बना। प्रोस्टिक एसिड जितना ज्यादा बनेगा उतना हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो उस केस में लिवर ही उस प्रोस्टिक एसिड को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू स्टेबल पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, एंड पोटेशियम सल्फोसाइनाइड इज अ नॉन टॉक्सिक सॉल्ट। सोचो कितना बड़ा काम कर रहा है लिवर। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड लाइक टू conclude today's class at this point only, but इन्हीं फंक्शंस को लेके हम आगे चलेंगे, और इन्हीं फंक्शंस को लेके हम आगे और देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आमतौर पे क्या होता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई ये जो है कोई भी फंक्शन जो लिवर परफॉर्म कर रहा है ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो नहीं होगा तो सारा कैओस हो जाएगा जी। अगर नहीं हुआ, लिवर अगर वो फंक्शन परफॉर्म जो कर रहा है वो अगर नहीं कर पाया, तो इट विल लीड टू कैओस, and that chaos can even cause a big damage to the organisms। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब रेगुलर रहे क्लासेस में, बी रेगुलर इन द क्लासेस, and Tutronix is going to be a big help for all of you, and we all are going to be with you. Be regular in the classes and be punctual in the classes. Definitely we are going to crack NEET 2020. Sorry, not NEET 2020, NEET 2021 or NEET 2022. Definitely we are going to crack NEET 2021 or NEET 2022, depending upon क्या आपका aim है। ठीक है, and I would like to tell you one more thing. Be regular in the classes, and सारे concepts जो हम आपको कराते हैं वो आप note down करते चलिए। I hope it is fine. If you have any doubts, you can ask.
So if you have any doubts, you can write to me as well as our official mail ID. You can write to that also, Tutronix. And whenever the question comes to me, definitely I will answer all the questions. Okay. So take care, and rest of the topics, rest of the functions of liver, we will be doing in the next class. In addition to that, we will also be doing pancreas, gallbladder, and so many other things. ठीक है जी, चले? ओके, तो जल्दी से अब मैं आपसे विदा लेता हूँ. चलिए, take care, bye bye.